students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is verbs. A verb is a word that is used to indicate the position or condition of the subject, to denote the action of the subject or what is possessed by the subject. Read the following sentences carefully. Ridhima is a member of a Rotary Club. She helps the poor and needy children. She has a kind and loving heart. In the sentence, A is tell the position or state of being the subject, Ridhima. In the sentence, B helps indicate the action of the subject. In the sentence, C has indicates her possession, i.e. kind heart. The subject and the verb may be followed by an object. An object is a noun or a pronoun that gives meaning to the subject and the verb is in the sentence. Not all sentences have object, but some may contain one or more. There are two kinds of object within a sentence, direct and indirect object. अब बच्चों वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं. वर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके किसी भी सब्जेक्ट के पोजीशन और उसकी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं. साथ ही साथ ये एक्शन को भी डिनोट करते हैं कि उस टाइम पे कौन सा एक्शन जो है, कौन सा काम जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं. सेंटेंस ए में इज जो है ये हमें पोजीशन और स्टेट बताता है सब्जेक्ट के होने की. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रिधिमा. सेंटेंस सी में हेल्प जो होता है ये सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है कि वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. और सेंटेंस सी में हैज़ जो है वो इंडिकेट करता है उसके पोजीशन को. ठीक है, कि वो क्या है, काइंड हार्ट है. अब आपके जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. A direct object is a noun or a pronoun that receives the action of a verb. Example, Sam likes apples and oranges. The boy in the red jacket bought a new kite. Points to remember. The subject with the direct object answer the question word or whom. Indirect object. Sometimes a direct object is followed by an indirect object. An indirect object is the noun or pronoun for which the action is done. Example, John gave me an apple. The boy in the red jacket bought his brother a kite. Points to remember. An indirect object comes before the direct object. Depending on the type of object they take, verbs may be transitive and intransitive. Transitive verbs are action verbs that require a direct object. Verb. Intransitive verb don't require a direct object. तो बच्चों पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपका नाउन और प्रोनाउन होता है जो कि किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जो आपका सब्जेक्ट होता है विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करता है जहाँ पे क्या या हुम पूछा जाता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी कभी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हुए होते हैं. ठीक है, और आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नाउन और प्रोनाउन कहलाता है जिसपे एक्शन होना होता है या किया जा चुका होता है. ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है. अब आपके ऑब्जेक्ट पे ये उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको वर्ब को कैसे लेना है. ठीक है, चाहे आप उसको ट्रांजिटिव वे में ले सकते हो, चाहे आप उसको इनट्रांजिटिव वे में ले सकते हो. ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ये आपके ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है, जबकि इनट्रांजिटिव में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता. Transitive verbs are action verbs that have an object to receive that action. The meaning of the transitive verb is incomplete without a direct object. Read the example below. Adding an object to the transitive verb has made the sentence complete. Examples: serial number incomplete, complete. 1. The shelf holds 3 books and a vase of flour. Second, the committee named a new chairperson. Third, the child broke the plate. Sometimes a sentence can have two objects, both direct and indirect. Example, he provided food to the homeless. The sentence has a direct object food and an indirect secondary object homeless. Each verb that take both direct and indirect objects are called detransitive verbs. Intransitive verbs that do not have direct objects are called intransitive verbs. Example are lived,
I cried, the book fell. In the above sentences, an object is not required to complete the sentence. The sentence is itself incomplete without an object. Points to remember: the intransitive verb has only a subject. The transitive verb has a subject plus a direct object. The detransitive verb has a subject, direct object, indirect secondary object. तो बच्चों हम जान लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ये ऐसे एक्शन वर्ब होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं जिनको एक्शन रिसीव करना होता है. ठीक है, जो मीनिंग होता है ट्रांजिटिव वर्ब का वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के बताया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि पॉइंट्स क्या होते हैं रिमेंबर करने लायक. लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. वर्ब्स जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. अब इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं इसमें आपका सब्जेक्ट होता है. ट्रांजिटिव वर्ब में आपका सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और आपका ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी होता है. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है इससे रिलेटेड जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्स. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स. एग्जाम्पल: द बॉय इज सिक, द मैन लुक्स टायर्ड. कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, subjective and objective. Subjective compliments. A subjective compliments gives more information about the subject. It can be an adjective, a noun or a pronoun. Example: glaciers are beautiful and dangerous at the same time. The words beautiful and dangerous give more information about the subject glacier. Objective compliments. An object complement provides additional information about the direct object. Example: I find him intelligent. Here him is the object and additional information about the object is intelligent. There it is an object complement. Points to remember: only linking verbs will have subject complements. Subject complement follow linking verbs. The object complement follows the direct object in the sentence. तो बच्चों complements के बारे में जान लेते हैं. ऐसे वर्ड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी सेंटेंस को सेंस देने के लिए, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है. अब कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं आपके सब्जेक्टिव एंड दूसरे होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ये आपको मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, अब ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है ग्लेशियर्स के बारे में. ग्लेशियर्स ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं एंड डेंजरस भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम. नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स. कोई भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, आई फाइंड हिम इंटेलिजेंट. ठीक है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है और उसके बारे में आपको क्या दिया गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैज़ गिवन हियर दैट ही इज़ इंटेलिजेंट. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, इंटेलिजेंट होगा. नाउ इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Auxiliary and main verbs. Verbs can be classified on the basis of their functions as main verbs, auxiliary verbs. Main verbs are verbs that denote the action in the sentence. They can be stand by themselves in the sentence. Example: run, dance, eat, play, etc. Auxiliary verbs or helping verbs are verbs that help the main verb in the sentence. Example: is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, all are helping verbs. The other children are playing outside. I have finished washing the dishes. Auxiliary verbs can also be used as main verbs. Example: she is very sad. There was enough water in the bottle. Points to remember: can, could, may, might, will, would, shall, should and must are all modal auxiliaries. They are always used as helping verbs. They can never be used as a main verb. Example: she can drive a car. I must post the letter today. तो बच्चों हम auxiliary और मेन वर्ब के बारे में जान लेते हैं.
वर्ब्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो उनके फंक्शन के बेसिस पे, जैसे कि आपके मेन वर्ब होते हैं एंड आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मेन वर्ब जो होते हैं ये आपके एक्शन को डिनोट करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, ये खुद से स्टैंड बाय करते हैं किसी भी सेंटेंस में, इन्हें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये आपके वर्ब को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। और इनके एग्जांपल हैं इज, एम, आर, ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये आप सेंटेंस में लगाते हो वर्ब को हेल्प करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, ये भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं और ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स ही कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसके प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। देयर इज़ अ सिंपल वे टू फाइंड आउट वेदर अ सर्टेन वर्ब इज़ weak or strong. In the past tense form of a verb, if there is a final d or t which is not there in the present tense, it is called a weak verb. Weak verb. Weak verbs are those which form their past tense by adding ed or d or t to the present. Example: capture, captured; achieve, achieved; bend, bent. तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आपके दो तरीके के वर्ब्स होते हैं, वो आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में आप देखते हो आपके हमेशा जो भी आपका वर्ड होता है उसके एंड में क्या लगता है, डी और टी लगता है उसके प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। वीक वर्ब्स कौन से होते हैं, वीक वर्ब्स जो होते हैं इसमें आप किसी भी वर्ड के आगे उसको पास्ट टेंस में दिखाने के लिए ईडी यूज़ करते हो, डी यूज़ करते हो या टी यूज़ करते हो। जैसे कि कैप्चर का क्या बन गया, कैप्चर्ड, ठीक है। अचीव का बन गया अचीव्ड। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिकल। एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस्ड। बाग, बाग, बाग्ड। बेंड, बेंड, बेंड। कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड। डैमेज, डैमेज्ड, डैमेज्ड। डील, डेल्ट, डेल्ट। फेवर, फेवर्ड, फेवर्ड। फीड, फेड, फेड। गेन, गेंड, गेंड। गैदर, gathered, gathered. Happen, happened, happened. Impart, imparted, imparted. Impress, impressed, impressed. Jerk, jerked, jerked. Justify, justified, justified. Keep, kept, kept. Knock, knocked, knocked. Land, landed, landed. Lost, lost, lost. Make, made, made. Present tense, past tense, past particles. Manage, managed, managed. Note, noted, noted. Notify, notified, notified. Open, opened, opened. Operate, operated, operated. Pair, paired, paired. Proof, proved, proved. Quarrel, quarrelled, quarrelled. Quote, quoted, quoted. Race, raised, raised. Rate, rated, rated. Salute, saluted, saluted. Say, said, said. Tame, tamed, tamed. Tick, tied, tied. Unfurl, unfurled, unfurled. Utilize, utilized, utilized. Visit, visited, visited. Vote, voted, voted. Wash, washed, washed. Work, worked, worked. Note: the inside vowels of some verbs are changed to form the past tense, but apart from this, they also need a final D or T, which is not there in the present tense form. Such verbs are also called weak verbs. तो बच्चों ऊपर टेबल में आपने देखा कैसे हम प्रेजेंट टेंस में कुछ वर्ड्स को लिखते हैं और कैसे जब वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं तो कैसे उन वर्ड का मीनिंग जो है, उनका जो वर्ड के लास्ट के जो वर्ड हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आप डी और टी वगैरह ऐड कर देते हो। तो ये सब भी वीक वर्ब्स के ही एग्जाम्पल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, बाय, बाउट, कैच, कॉट, टेल, टोल्ड। Strong verbs. Strong verbs form their past tense by changing the inside vowels of their present tense. Example: stand, stood, give, gave, blow, blew. तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में बताया गया। वीक वर्ब्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ लास्ट का जो वर्ड होता है उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, ऐड ऑन करना होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो होते हैं इसमें आप पास्ट टेंस में जब चेंज करते हो तो उसके बीच के जो वॉवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे स्टैंड का बन जाता है स्टूड, गिव का बन जाता है गेव। तो बच्चों और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिकल। अराइज, अरोज, अराइजन। अवेक, अवोक, अवेकन। बियर, बोर, बोर, बॉर्न।
blow, blew, blown, choose, chose, chosen, come, came, come, dig, dug, dug, do, did, done, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, freeze, froze, frozen. Present tense, past tense, past particles. Give, gave, given, go, went, gone, hang, hung, hung, hold, held, held, know, knew, known, lie, lay, led, ride, rode, ridden, ring, rang, rung, run, rain, run, see, saw, seen. तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।